पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटियाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में नशे के खात्मे और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दो मामलों को याद दिलाया, जिनके दम पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। सिद्धू ने कहा कि सच्चाई सबके सामने है। पंजाब में न तो चिट्टे का कारोबार रुका है और न ही चिट्टे के कारोबारी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सभी जानते हैं कि साल 2015 में बादल परिवार ने क्या कुछ किया, मगर अभी तक ये मामला नतीजे तक नहीं पहुंचा। पंजाब के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। मौजूदा सरकार इस पर कोई कड़ा फैसला नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज़ पटियाला। ਬਾਈ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ चिट्टा वेचण वालियां नूं जिन्हां साडी जवानी ते कलंक लाया उन्हां नूं सज़ा याफ्ता करना। अज भी जे तुसीं इंसाफ दा मुੱਲ पुछना होवे ना ते उन्हां तों पुछो जिन्हां नाल बेइंसाफी होई है। पंजाब दे लोग अज भी गुरु दे बेअदबी दे इंसाफ नूं उडीकदे है। ते जे सच पुछो, मैं हमेशा सच ते पहरा दिता है, ते जे सच पुछो उम्मीद छड्डी बैठे 6 साल। अज भी आस नाल जिन्हां मुद्दिआं ते सरकार बनाई सी पंजाब के लोगों ने, वो सवाल बने खड़े हैं साडे मोहरे। वो सवाल ने और लोग ठगे महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने सवालों के कोई उत्तर नहीं मिले। पहला मैं उन्होंने आना जिन्हें चिट्टे का दरिया वगाया पंजाब। और पीढ़ी उस कगार ते खड़ी करती भी लोग कहेंगे डुब गए डुब गए। उन्होंने सज़ा याफ्ता करने लई सरकार बनी। STF की स्थापना हुई। एक ईमानदार अफसर नूं बाहरों बुलाया गया। लोग उहदे नाल जोड़े गए, अफसर जोड़े गए, करोड़ों रुपए खर्चे गए। कोख हुई। रिपोर्ट बना के सबूत दे नाल दोषियों के नाम पेश किए गए ते हाई कोर्ट नूं वो रिपोर्ट दे दी। जदों कुछ अरसा बीतिया तो लोगों ने बूहा खड़काया हाई कोर्ट का भी इन्नी देर क्यों। अहम मुद्दे ते इस विच देर क्यों, यह सवाल पूछा गया। ते हाई कोर्ट ने सरकार नूं कहा आ लो रिपोर्ट, आ लो रिपोर्ट, लो एक्शन ते करो कार्रवाई। रिपोर्ट टीवी ते लाइव चली, नेशनल चैनल। मैं बेखौफ होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरेआम सबूत पेश किए, पर सरकार कहती असी पढ़ी नहीं।
ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ? ਚਲੋ ਜੀ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਛ? ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਤਲੇ ਜਾਣਗੇ ਖੁੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਘਾਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸੂਰ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। इंटेंट मनसूबा मनशा सारा समझाऊं। फिर भाई जी जो बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, फिर लै आओ किड्डे तो किड्डा वड्डा वकील, वो की कर लू वो की कर लू, बगैर बुनियाद किवें खड़ी करोगे इमारत, तैजू। पर फिर भी पंजाब सरकार, चलो सरकार भाई जी, सरकार जिहदे वकार ते सवाल, सरकार दा वकार, उहदी इंटेंट नाल, लुका छिपी नाल नहीं, लुका छिपी खेले जाओ ना, हुण नहीं हो चल, हुण ते इंटेंट है। थोड़े मुकदमियां दे विच मुकुल रोहतगी, चिदंबरम साहब नामी ग्रामी है जी, दुष्यंत दवे साहब दावा पेश करते रहे, दावा दवे, ते गुरु साहब आदि अनंत, जिन्हां तो वड्डी अहमियत पंजाब जिउंदा ही उन्हां दे नाम ते उन्हां दे केस दे विच एडवोकेट जनरल पेश नहीं हुंदा। चलो बड़े वकीलों ने तो गल ही छड्डी, कि कहने की लोड़ है कुछ है जी, कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह पता नहीं सी भी FIR किवें हो रही है। भाई जी 2015 च ले लो, 2015 ते भी FIR अणपछातियां दे नाम जे ना पाए तो जिन्हां ते तशद्दद हुई उन्होंने 14 बंदियां दे पाते, पंथप्रीत होनी नाले खदेड़े हो तुसीं उन्हां नूं, वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं नूं, गुरु दे इंसाफ मंगदिआं नूं, नाले उन्हां दे गोलियां भराओ, नाले उन्हां ते FIR पाओ। जे तुसीं FIR पाने हो, क्रॉस FIR पैंदी है तो दोनों पासे पैंदी है। तशद्दद करन वालियां ते पुलिस वालियां ते जुर्म करन वालियां ते कोई FIR नहीं, अनपछाते जिन्हां ते हो रही है उन्हां दे नाम लैके उन्हां ते FIR क्यों भाई? सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई, कमीशन के मुखी जस्टिस रणजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर, पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा दें, जिहड़ा दिखदा है वो सबूत, दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉगनिजेबल ऑफेंस बनता। कॉगनिजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉगनिजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, ते कासियां दे चारां पंजां दे गोली वजी है, यह ऑफेंस बनता। पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया बाई जी, रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी लोगों के नुमाइंदियां च आ गई, 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा है, वो सार्वजनिक होगी, रिपोर्ट पब्लिक करती। जिन्हां ते दोष लगे सी वो ते मैदान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों ही भज गए। तुहानूं पता लगू भी ये गल कित्थे तक जाती है। पर सारी दुनिया ने देखा, लाइव चलिया हो,
सारी दुनिया ने देखा मेरे जगत गुरु दुनिया के गुरु सृष्टि के मालक दे बारे 100 MLA ने की कहा, इकट्ठे होके एकमुठ एकजुट होके की कहा, नाम ले लेके पुलिस वालियां दे साजिश बेनकाब की और क्या कार्रवाई करो रेजोल्यूशन पे आ, कोई शक रेजोल्यूशन पे। फिर मैं पूछता हूं उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है भाई, कौन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? ये स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट है, पंजाब सरकार है। पंजाब दे लोकां नूं कोई समझा दे, कोई, मैं कहना कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं, FIR अनपछातियां ते क्यों? गोली कांड दे विच पुलिस वाले कौन सी भाई जी? चुप। गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी? हुक्म देने वाले कौन सी? निक्के न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी पता नहीं, पता चुने नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ पता है। पंजाब के लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि कमिशन ने प्राइमा फशाई एविडेंस दिता और कहता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है